Sir, your mic is off. कल्याणी विल बी रिमूव्ड, तो वो वापस आके ज्वाइन कर ले. ओके, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है. कल्याणी विल टेल कल्याणी टू ज्वाइन, है ना. उसको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए टू ज्वाइन through the link. You can send the link also to on WhatsApp, any one of you, Harshita. You can send the link to the other students who want to join. Please send the link. Sir, may I send the link in the group? Yeah. So let me start this session. So very good morning to all of you students. Morning, So sir. today we are going. Yeah. So today we are going to start our new chapter, that is motion in a plane. And in that first part of this, we are going to see the vectors. And this I am using the PPT made by our Honorable C. Mani sir, who retired as a Deputy Commissioner of Chennai region. So we will start with some of the small terms, which though you are familiar with many of the terms, we will go through thoroughly with these terms, because until and unless you know this language of this vector algebra while vector analysis, आप लोग हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना. तो ये frequently ये terms आती रहेगी हमारे उसमें, तो हम लोग वो terms याद कर लेते हैं. So you keep on writing also. Scalar and vectors, you all know that all the physical quantities can be divided into two types. They are scalars and vectors. So basic difference between them is in their direction. One is without any direction, and one it with direction is also involved, like distance, displacement, speed, velocity, all of these things you know, है ना. तो ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं, है ना. तो स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल, मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड बट नो डायरेक्शन, whereas in this vector quantities both magnitude and direction is equally required, like velocity, acceleration, displacement, force, magnitude, and all that. So now as I told you in that chapter also, when there was a motion in a straight line, so if even you take a distance or displacement, you say it, or speed or velocity, it doesn't make any difference because it is going in a straight line. So there is no change of direction is there. तो वहां पर हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब हम चूंकि 2 डायमेंशन में आ गए, वेक्टर में, इसमें प्लेन में आ गए, तो हम डायरेक्शन भी चेंज करेंगे. तो यहाँ पर वेक्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. और वेक्टर्स हम ऐसे ही डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. डिस्टेंस को तो हम ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते. डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में था हमारा, मान लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट है ना 1 डायमेंशन में, तो हमने इस डिस्टेंस में उस डिस्टेंस को ऐड कर दिया. बट दैट इज नॉट द केस when we are displacing, we are moving, the velocity is there or displacement is there in 2 dimension. तो 2 डायमेंशन में मान लीजिए पहले ऐसे गए और फिर ऐसे चले गए, तो हम इन दोनों को ऐड करके, उस मैग्नीट्यूड को ऐड करके टोटल मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का नहीं निकाल सकते, है ना. तो ये सब करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रूल्स ऑफ दिस अलजेब्रा. So vectors cannot be added, subtracted, or multiplied or divided according to simple rules of algebra, but they can be added, subtracted, or multiplied according to the rules of vector algebra. तो हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में स्पेशली. A vector cannot be divided by another vector as it is not valid operation in vector algebra. तो ये वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम लोग कुछ नियम, हम लोग कुछ लॉज है वो हम पढ़ेंगे. सो दिस फर्स्ट वन इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन. ये हम पढ़ेंगे, और साथ में ही कभी कभी हम उसी लॉ को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दैट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो कभी कभी हमें लगाना पड़ता है, तो वो हम आज देखेंगे, है ना. और जनरली जो किताबों में वेक्टर क्वांटिटी को दिखाया जाता है वो कैपिटल लेटर में दिखाते हैं और उसको डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ऐसे बोल्ड, because in a printed form you can show in a bold form, है ना, v. तो ये क्या दिखाएगा, वेलोसिटी दिखाएगा. लेकिन हमारी नोटबुक में जब हम लिखेंगे तो हम उसको नॉर्मल हमारा v स्मॉल भी लिख सकते हैं या कैपिटल लिख सकते हैं, बट उसके ऊपर हमको
एरो लगाना पड़ेगा, यू बिकॉज यू कैन नॉट मेक इट गो ऑन मेकिंग इट बोल्ड, वो कागज ही फट जाएगा आपका, तो एंड टाइम इज वेस्टेड, तो हम ऐसा नहीं करेंगे. बट इन बुक्स you can see this if it is not shown with a arrow over here, yeah, but it is shown with a bold letter, we can consider it as a vector quantity. समझ में आ गई बात? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, So sir. for example, velocity vector is represented by this bold V. ना ये bold V है यहाँ पर, है ना? So while writing, it is difficult to reproduce bold face. Therefore, a vector can also be represented as this, है ना? इस तरह से लिखते हैं हम लोग. तो हम लोग इसी तरह के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, साइन का उपयोग करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए. लेकिन किताबों में आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा नहीं किया गया और बोल्ड में लिखा गया तो भी आप लोग. और मैग्नीट्यूड, दैट इज स्केलर पार्ट ऑफ दैट वेक्टर, इट इज प्रेजेंटेड बाय द लाइट फेस. उसको उसी के लाइट फेस के रूप में भी दिखा जा सकता है, या उसको एरो के साथ लिख करके उसके दोनों तरफ हम क्या लगा सकते हैं, ये उसको क्या बोलते हैं, मॉड वैल्यू. दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ओनली, है ना, मॉड वैल्यू कह सकते हैं हम लोग, है ना. तो ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, मॉड वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, राइट. सो नाउ the position and displacement vectors, make it, underline it or write it, heading डाल दीजिए. पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैसे दिखाए जाते हैं, हमारे 2 डायमेंशन में हमने दिखाना है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही केवल यहाँ पर होगी, जेड एक्सिस नहीं होगी. सो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ दिस. कैसे दिखाते हैं हम देखते हैं. प्लेन में हमें दिखाना है. सो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन प्लेन, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. हम लोग जनरली ओरिजिन से ही निकालते हैं, तो ओरिजिन से पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम लोग दूसरी जगह से भी निकालेंगे पोजीशन, लेकिन शुरुआत हम सिंपलेस्ट वे में करते हैं. सो दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, आप 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े हुए हैं, तो यू नो दैट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0 0. ये 0 0 आप लोग जानते हैं ना. तो ये 0 0 है, प्लेन है फिगर, तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. तो ये एक पोजीशन है, पॉइंट पी है. तो इसका पोजीशन तो हम जानते हैं, ये कुछ होगा, एक्स वाई जो भी कोऑर्डिनेट होंगे इसके, वी डोंट नो, है ना, एक्स वाई जो भी होंगे. लेकिन इसको हमको वेक्टर फॉर्म में बताना है कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसकी पोजीशन क्या है, और यहाँ से यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है. तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा. तो लेट अस सी हाउ वी रिप्रेजेंट इट. इट्स अ ब्यूटीफुल वे एंड वेरी इजी वे आल्सो, बट बी विथ मी थ्रू आउट दिस लेक्चर, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको. सो लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन. हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया है. एट सपोज टाइम टी, एक टी समय पर ये पॉइंट यहाँ पर है ना, इस पोजीशन पर इसका है. तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन पी. यहाँ से ओरिजिन से पी तक हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और एक एरो हेड बना देंगे, ऐसे एरो हेड एट पी ऑन द लाइन ओपी. तो ये ओपी के साथ ये एरो हेड जो बना है, तो द पॉइंट ओ ऑफ द ओपी इज कॉल्ड एज टेल. इसको इस एरो का टेल बोलते हैं और इसको इसका हेड बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर ओपी. तो पी इज P, and the point P of OP is called as the head of the vector OP. तो इस तरह से जब कोऑर्डिनेट्स में दिखाया जाता है तो ये बोला जाता है हेड और ये बोला जाता है टेल. और वेक्टर OP को किस तरह से दिखाएंगे, OP लिखेंगे और इसके ऊपर हम वेक्टर साइन ऐसे दिखा देंगे, मतलब एरो दिखा देंगे. सो दिस इज वेक्टर OP बिकॉज दिस इज शोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. दो इट्स ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O और P होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इस वेक्टर को, OP वेक्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं. और इसी OP वेक्टर को हम एक स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हैं, R जनरली होता है, ये पोजीशन दिखाता है उसको, तो ये R वेक्टर से, R से भी दिखा सकते हैं हम लोग. सो OP इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज रिप्रेजेंटेड, इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर. तो ये R वेक्टर जनरली यूज किया जाता है, या तो OP बोलिए आप या R बोलिए. तो जनरली हम R वेक्टर पोजीशन वेक्टर के लिए यूज करते हैं, वो पोजीशन दिखा रहा है उसकी.
सो लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P टू P डैश। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी ये हो गया है, या यहाँ की ये पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पर R वेक्टर, है ना। अब हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन इसके T समय पर P पॉइंट पर था, वो जो पॉइंट है वो वहां था। अब वो मूव हुआ है मान लीजिए, और वो मूव होकर के मान लीजिए किसी दूसरी पोजीशन P डैश पर पहुंच गया है। किस समय पर? T डैश पोजीशन टाइम पर। T टाइम पर वो उसकी पोजीशन क्या है? ये वाली है। और अभी वो T डैश समय पर कहां पहुंच चुका है? मान लीजिए T समय पर ये यहां पर है, एंड नाउ एट टाइम T डैश it has moved a little bit, and suppose it has moved like this, suppose, है ना, it has traveled some distance like this, है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इस तरह से मूव हुआ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वी विल हैव टू जॉइन दिस P विथ P डैश डायरेक्टली, तो दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट, जस्ट जॉइन इट। यहां पर भी हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको ऐसे। तो ये जो है ये क्या है? P टू P डैश इज द डिस्प्लेसमेंट, और P टू P डैश डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये पोजीशन R है हमारी, और ये P डैश पर जब पहुंच गया है तो ये पोजीशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमारी ये पोजीशन है R डैश, पोजीशन वेक्टर है, और OP डैश ये वाला पोजीशन वेक्टर है। P डैश पर जब वो पहुंच चुका है वो ऑब्जेक्ट, उस समय पर इसका पोजीशन वेक्टर OP डैश है। P पर जो वो पॉइंट था ऑब्जेक्ट, उस समय उसका पोजीशन वेक्टर OP था, जिसको हम R भी लिखते हैं। यहां पर हम इसको R डैश लिख देंगे, बिकॉज इसको P डैश ले लिया तो इसको R डैश ले लिया। इतनी बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई है, राइट? So now the position vector, all these things are written here also. The same thing I am explaining in my own words. So displacement vector is PP dash. इस displacement vector को बोला जाता है PP dash, और वो कुछ नहीं है, simply the final position minus initial position. The final position was R dash, is R dash, and initial position was R. So this position vector, this displacement vector, this PP dash is nothing but equal to OP dash, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, OP dash minus OP. So this is the way of representing the displacement vector. अब वो चाहे डिस्प्लेस इस तरह से, उसका जो पाथ रहा हो वो इस तरह से P डैश रहा हो, या वो ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव होकर के ऐसे गया हो, we are not concerned with that path. We are concerned with only the final position and initial position. So if final position is P dash and initial position is P, then the final minus initial position we have done, and that has given us the displacement vector P dash. Okay, so note that the displacement vector is same even if the object moved through different courses from P to P dash. चाहे वो P डैश गया हो, या पूरा 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 अनंत ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके वो 2 डायमेंशन में लगा करके वो यहाँ पहुंचा हो, कितनी भी दूरी तय करके, तो उससे मतलब नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न विद द इनिशियल, एंड it can be infinite number of paths on which it can go by travel its distance, right? So that way it is that. So the position vector of objects provides following information. तो पोजीशन वेक्टर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? देखो, हमें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या क्या चीजें हमें बताते हैं. इट्स वेरी important. So it gives straight line distance, that means the displacement. It gives position vector हमें क्या बताता है? जैसे शुरू में बता दिया मैंने आपको, it gives the straight line distance of the object from the origin. origin से ये straight line distance बता रहा है ना? तो ये r का आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो, या OP का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा. It gives the direction of object with respect to origin. ये डायरेक्शन भी दिखा रहा है. देखो ये डायरेक्शन थोड़ी सी, देखो आप एंगल अगर और हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं तो ये एंगल ज्यादा है, मतलब ये डायरेक्शन है. ये P डैश की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये डायरेक्शन भी हमें बता रहा है. तो ये वेक्टर क्यों है? बिकॉज इट इज शोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो एंड the direction also, in what direction we should go straight away to reach P dash, in what direction, by making what angle with the horizontal we should move to reach at P. So this angle as well as this the magnitude of that, no,
that is giving us the exact location of that point P or P dash in this plane, right? Now, when we will say that two vectors, two or more than two vectors are equal, so equality of vectors की क्या condition है वो देख लेते हैं. और कैसे इक्वल होंगे बच्चों? अगर वेक्टर है तो डेफिनेटली उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड दे शुड बी along the same direction. So suppose we take two vectors A and B and they are said to be equal if and only if they have the same magnitude and the same direction also. See very nicely, it is shown here. This is OP, O to P, pointing from O to P, and A is the हमने वेक्टर मान लिया इसको, और ये B है जो कि Q to S है, लेकिन आप देख सकते हैं both are parallel and both are shown equal in length also. ये जो इसका जो लंबाई है ना वही इसके मैग्नीट्यूड आप समझ सकते हैं. So magnitude and direction both are same or not? So can we say that vector A is equal to vector B? Yes, sir. Right? Yes, sir. So इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम लोग. Now इसी में हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे. देखो, the figure shows two equal vectors, है ना? चलिए. Now the figure shows two equal vectors A and B. To check their equality, shift B parallel to itself until it tail Q coincides with that of A. That is Q coincides with O. अब ये Q को आप Q को O के साथ coincide कर देंगे तो अपने आप P के ऊपर S आ जाएगा. तो अपने आप हम देख सकते हैं, लेकिन वैसे भी दिख रहा है ये. लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम इसको coincide करके, ये सुपर इम्पोज करके, we can just check whether they are equal or not. Because if OP को पूरी तरह से ये QS ढक देता है कि नहीं, ये हम चाहे तो देख सकते हैं, right? Yes, see how nicely sir has shown. I'm just moving it back and forth. See how nicely it is shown, right? See, anyone can understand. Anyone can understand. Even this concept can be explained to even an 8th class students, and that student can understand if it is shown with such a beautiful way through animations and through simulations and all those things. If we use this PPT in a best possible way, we can explain it to anyone. So since their heads S and P also coincide, so two vectors are said to be equal. So we write in this way. So vector A is equal to vector B. आप pronounce भी करते समय आप केवल A नहीं बोलना है, vector A बोलना है ना, ध्यान रखिएगा. Now we are taking another one, another situation. See, now O dash P dash हमने ले लिया. Same नहीं ले रहे हैं because हमने यहाँ OP ले लिया, तो we will take here O dash P dash and here Q dash S dash. But now this A dash and B dash, these two vectors, are they equal vectors? Can you see they are equal? Sir, they are not. Can we see? No, sir. Okay, why they are not equal? Sir, their direction is not same. Yeah, direction उनकी same नहीं है. Though we can see, we can observe that their magnitude is same. शायद उनका magnitude same आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग अंदाज से ना, approximately. लेकिन direction अलग अलग है. So they are not, they cannot not equal because they have different directions. So you understood this concept very well. तो even हम इसके ऊपर लाते हैं, मान लीजिए, तो आप देख लीजिए, ये they are not coinciding. O dash तो Q dash के साथ coincide कर लिया, लेकिन P dash और S dash ये coincide नहीं किए टिप टिप. So हम लोग इसलिए हम कह सकते हैं they are not equal. Now O double dash ले लेते हैं हम लोग और एक P double dash point, और इसको जो ज्वाइन कर रहा है ये O dash double dash P double dash, और ये A double dash हमारा एक वेक्टर हो गया. This is the vector. Now we will see दूसरा एक और हो गया. अभी देखिए, are they Q double dash S double dash, मतलब A double dash B double dash, ये वेक्टर्स क्या दोनों इक्वल वेक्टर्स कहे जा सकते हैं? Can we say that? No, sir. No, sir. Why they are not equal vectors? Their magnitude are not equal. Yeah, their magnitudes are not equal, though their directions are same. Both are pointing towards the east direction. ना? अगर हम इसको देखें तो it is in east, due east, right? So, but they are not equal because here the magnitude is not same. So both magnitude and direction should be same. So your first condition is only for equality. This is not
equal vector, second condition, and third condition is not equal vector. Understood? So this way you can understand the concept of equality of two vectors. See, when we have superimposed तो क्या हो गया, वो magnitude इसका कम आ गया, दो डायरेक्शन सेम होने की वजह से उसके ऊपर तो आ गया वो exactly, but you can see this S double dash जो है हेड है वो काफी पहले है P double dash के. So ये हम लोग इस तरह से different magnitudes है ये समझ सकते हैं. So those things are only written here also. Now, as I told you, vector algebra is from the normal algebra. We are going to vector algebra. So until and unless we know some of the terms, some of the fundamental definitions, we cannot understand this vector algebra. So उसके लिए हम कुछ बात करते हैं. Equal vectors देखिए, ऐसे हम लोग अब negative vector देखेंगे. So what is negative vector? So negative vector means the vector defined as another vector. कोई एक वेक्टर का दूसरा वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा यदि if having the same magnitude, though its magnitude is same but drawn in opposite direction. जैसे हमने देखा था AB, अब उतना का उतना अगर अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट ओनली डायरेक्शन जो है वो इस तरह से पैरेलल होने की बजाय वो क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा. तो ए का नेगेटिव वेक्टर क्या कहलाएगा, माइनस ए. एग्जैक्टली सेम होगा तो हम उसको ए इज इक्वल टू माइनस ए बोल सकते हैं. यहां दिखाया है, देख लो, यू कैन जस्ट सी ओपी इज अ वेक्टर ए. नाउ जस्ट हमने ऐसा लिया और इसको बस पलट दिया. जस्ट सी हाउ नाइसली विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन यू कैन सी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ए एंड माइनस ए. दैट मीन्स ओपी एंड पीओ. ये ओपी है, ये भी ओपी है ना, ये भी ओपी है, बट ओपी का डायरेक्शन अलग है. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, राइट. सो दिस वे इफ यू सुपर इम्पोज यू कैन सी दिस, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया. तो ये भी आप देख सकते हैं कि दिस इज ए एंड दिस इज माइनस ए. सो ए प्लस माइनस ए इज गिविंग द रिजल्टेंट एज 0. बट यू कैन सी हियर, you can see, as you know, we will understand afterwards also, when we add a vector with a vector, we get a vector only, and that vector which we get, we call it a null vector or zero vector. इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं केवल 0 नहीं लिखा है, 0 के ऊपर भी हमने एरो लगाया है. तो ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर आता है जब एक वेक्टर को हम उसके नेगेटिव वेक्टर से ऐड करते हैं. सो वी गेट अ वेक्टर ओनली, बिकॉज एलएचएस में अगर वेक्टर है तो आरएचएस में भी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए. तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हमको दिखाने के लिए हमने इस नल वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे अभी. तो अंडरस्टूड दिस. इक्वल वेक्टर्स हमारा हो ही चुका है, हम लोग सारा पढ़ चुके हैं. को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल, ये भी हम देख चुके हैं. इनिशियल पॉइंट सेम है उनका, बट आफ्टरवर्ड्स दे आर डाइवर्जिंग. So they are called as co-initial vectors because their tails are same, but their heads are going in opposite direction. Their magnitudes are also different and their direction also different. So common initial point होगा, तो they are called as co-initial vectors. Just इसका उल्टा co-terminal vectors because they are terminating at one position. जैसे सारी नदियां होती हैं, वो कहाँ जाकर के मिलती हैं, टर्मिनेट कहाँ होती हैं वो, where they terminate? कहाँ मिलती है? टर्मिनेशन का मतलब नहीं समझते आप, टर्मिनेटिंग एट, हाँ मिल जाते हैं, समुद्र में जाकर के मिल जाती है ना. तो बस हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज को टर्मिनल वेक्टर्स, है ना. तो कॉमन उनका टर्मिनल है, दे आर टर्मिनेटिंग, है ना. लास्ट पॉइंट सेम है. टर्मिनस, टर्मिनस का मतलब ये होता है हमारा CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, because all the trains coming from different directions are terminating there. वो वहां समाप्त हो जाता है, वहां उससे आगे नहीं जा सकता है. So that is called as terminus. रेलवे के टर्म्स में बोले ना तो टर्मिनस वही है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, या बहुत से दूसरे जो है जहां पर एंड हो जाता है, वहां के बाद आगे नहीं जा सकती है ना. तो दैट इज यहाँ पर भी वही बात है. दो वेक्टर्स यहाँ पर देखो आ रहे हैं अलग अलग जगह से, और यहाँ पर आकर के वो दो या दो से ज्यादा वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी co-terminal vectors if they terminate at one point only. So this is the termination point O, right?
So this way you can terminate at common point. कोप्लेनर वेक्टर्स, तो कोप्लेनर तो ये सारे हैं कि नहीं बताओ, एक ही प्लेन में है सारे वेक्टर्स, देख लो है ना. The vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. सेम प्लेन मतलब हमारा ये प्लेन हमने क्या लिया है बच्चों, x है और ये y है बच्चों, है ना. दिस लैपटॉप की जो ये स्क्रीन है, दिस इज द प्लेन. सो दिस इज हैविंग x एक्सिस एंड y एक्सिस. लेकिन अगर कोई मैं वेक्टर ले रहा हूँ, 2 डायमेंशन में ले रहा हूँ, प्लेन में ले रहा हूँ, लेकिन वो सेम प्लेन में नहीं है, वो मैंने कौन से प्लेन में ले लिया, मान लीजिए x है और ये z प्लेन जो कि मेरी तरफ आ रहा है, ये वाली एंगल, ये वाला एक्सिस. तो मैंने एक्स जेड प्लेन में अगर एक वेक्टर ले लिया और एक वेक्टर मैंने क्या ले लिया, एक्स वाई प्लेन में ले लिया, तो दे विल नॉट बी कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स. इफ बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन एक्स वाई और बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन एक्स जेड प्लेन में है दोनों, या दोनों वेक्टर्स वाई जेड प्लेन में है, दोनों वेक्टर्स, तो मैं उनको बोलूंगा कोप्लेनर. तो ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ये दोनों आपस में कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और ये दोनों आपस में कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. बट दिस वेक्टर ए मान लो दिया है इसको नाम, और ये वेक्टर मैंने बी दिया है, सो दे आर नॉट कोप्लेनर. अंडरस्टूड द कंसेप्ट? यस सर. ओके, यस सर. सर कोप्लेनर वाला एक बार और बताओ ना, मुझे समझा नहीं. बिल्कुल 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 बताते हैं. चलो यहाँ पर नए में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा. देखो, हमने अभी प्लेन चल रहा है, हम लोग जनरली जो प्लेन लेते हैं, वी टेक अ एक्स वाई प्लेन, राइट, एक्स वाई प्लेन. तो इस एक्स वाई प्लेन में मैंने कोई वेक्टर बनाया है ना, ऐसे ही बनाया है. तो ये दोनों कौन से कहलाएंगे, मान लो ए है मेरा ये वेक्टर, ये बी है. सो दीज टू वेक्टर्स विल बी कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर मतलब कॉमन प्लेन है उनका. Which common plane this is having? XY plane. This is in XY plane, right? Both the vectors are in XY plane. This XY plane में दोनों exist करते हैं. लेकिन मैं अगर एक और वेक्टर बना रहा हूँ 3 डायमेंशन 3D भी, तो ये 3D मैंने दिखाया ऐसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, सामने की तरफ आ रहा है आपको ये. If I show this way, see this है ना, this plane, तो समझते हैं ना बच्चों, ये Z, तो Z एक्सिस कैसे होगी, सामने की तरफ होगी. तो अगर ये सामने की तरफ मैंने एक्सिस बनाई है ये, राइट, तो ये क्या है, ये सामने की तरफ है. तो ये एक्स जेड प्लेन में कोई वेक्टर दोनों मैंने बना दिए, ये P है, ये Q है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक्स जेड प्लेन के वेक्टर्स कहलाएंगे. तो इनको भी हम आपस में क्या बोलेंगे, दे आर कोप्लेनर, राइट. ये वाई जेड प्लेन है, ये भी आपस में ऐसा है और ऐसा है, ये ऐसा प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है, देखो ये वाला ऐसा प्लेन है, ये वाला एक ऐसा प्लेन है, ये नीचे वाला ऐसा प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है, एक ऐसा प्लेन बन सकता है और एक ऐसा प्लेन बन सकता है. बन सकते कि नहीं, 3 प्लेन हम लोग दिखाते भी हैं कि नहीं, किताब को भी 3 प्लेन्स में दिखा सकते हैं कि नहीं. कैन यू शो, है ना. दिस इज वन प्लेन, दिस इज वन प्लेन, दिस इज हाइट इनटू लेंथ, दिस इज वन प्लेन, दिस इज ब्रेड्थ इनटू हाइट, दिस इज वन प्लेन, एंड this is length into breadth is another plane. So if some vector is drawn in this plane, we will call them, 2 vectors are drawn in this plane, they are called as coplanar. But if suppose 2 vectors I am drawing here, ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर, तो ये प्लेन दूसरा हो गया कि नहीं है, ये ब्रेड्थ इनटू हाइट वाला प्लेन हो गया, राइट. मतलब ये एक्स वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो यहाँ पर अगर मैंने दो वेक्टर बनाए, है ना, तो ये कैसे हो जाएंगे, क्या कैसे कहलाएंगे, ये भी कोप्लेनर कहलाएंगे, एक्स जेड प्लेन में कहलाएंगे, वाई जेड प्लेन में कहलाएंगे, है ना. और अगर मैंने यहाँ पर 2 वेक्टर बनाए इसके ऊपर, तो ये क्या कहलाएंगे, ये ब्रेड्थ है मेरी, है ना, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन के वेक्टर्स कहलाएंगे. ये यहाँ पर मैं कोई 2 वेक्टर बनाता हूँ इस प्लेन में, तो ये क्या कहलाएंगे, मेरे वाई जेड वेक्टर. अंडरस्टूड नाउ कंसेप्ट, है ना. I will try to make use of all these normal things to make you understand. हमें कोई दूसरी एक्टिविटीज और कुछ टीचिंग एड की जरूरत नहीं है ना. हम लोग बहुत सी चीजों को बहुत अच्छे से हमारे डेली लाइफ की जो चीजें हैं उससे हम समझ सकते हैं ना. तो डेफिनेटली अब मैंने मान लो ये हमारा ए बी मैंने इस प्लेन में बनाया हुआ एक्स वाई प्लेन में, दोनों ए और बी यहाँ है. अब पी और क्यू तो यहाँ पर है, तो डेफिनेटली पी और क्यू और ए और बी, P और Q अपने आप में कोप्लेनर है, A और B अपने आप में कोप्लेनर है, लेकिन A और P कोप्लेनर नहीं है, B और Q कोप्लेनर नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है. अंडरस्टूड? यस सर. आई होप इट इज क्लियर नाउ. चलिए, नाउ कोलिनियर.
कोलिनियर, ये सब these all terms you have heard in class 10th 9th मैथ्स। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 9th 10th का मैथ्स आपको आना चाहिए, बिकॉज these terms are already familiar terms। बट नहीं आता है तो भी, अभी भूल गए होंगे तो भी हम अभी इसको रिफ्रेश कर लेंगे। सो कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर है ना, एक ही लाइन में देखो कोलिनियर है ना। सो ऑल दीज वेक्टर्स ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश, ये सारे जो है क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। अब कोलिनियर वेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सेम डायरेक्शन में हो गए तो भी कोलिनियर है ना। हाँ, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नो नीड दैट दैट मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गए तो वो तो इक्वल वेक्टर्स हो गए, लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में है ना, तो भी वो क्या कहलाएंगे, सेम लाइन में है, अलोंग द सेम लाइन है, तो भी वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये Yes, sir. हमारे, तो टू वेक्टर्स हैविंग equal or unequal magnitudes which either act along the same line or along the parallel lines in the same direction or along the parallel lines in the opposite direction। opposite direction में तो भी वो कोलिनियर, because along the same line है वो, so they are called as collinear vectors, right? Our next term comes is that unit vector। what is unit vector? unit नाम में ही उसका unit है, मतलब क्या, वन, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, तो वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। वो कैसे होगा देखते हैं, उसको हम अलग ढंग से भी डिफाइन करते हैं। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो हम जानते ही हैं बच्चों, ये एक नया कंसेप्ट है, देख लो। हम जानते हैं बच्चों कि वेक्टर ए को हम इस तरह से दिखाते हैं बच्चों। अब वेक्टर ए है तो क्या क्या चीजें उसमें बच्चों हमें पता है कि उसका क्या है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसको मैं पहले आई विल rub it everything now before I show you this। I will show you one more equation। as we know vector is made up of what, its magnitude as well as its direction। होता है कि नहीं, दोनों चीजें होती है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसमें। तो इस वेक्टर ए को हम स्प्लिट करके दो पार्ट्स में दिखा सकते हैं। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को मैंने जैसे बताया था आपको, मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, मॉड वैल्यू में लिखते हैं हम लोग ऐसे, है ना। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बट साथ में अगर यहाँ वेक्टर है तो यहाँ भी इक्वेशन बनानी है, तो हमें वेक्टर ही चाहिए, तो वो हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन। तो ए का जो डायरेक्शन है उसको हम दिखाते हैं ए कैप। विल रीड इट ए कैप। सो दिस इज अ डायरेक्शन वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। इसको हम डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। और वही अगर एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमारा हमने डायरेक्शन वेक्टर ले लिया है, यूनिट वेक्टर जो ले लिया है वो हमने आई कैप ले लेते हैं। वाई डायरेक्शन के लिए अभी बता देता हूं मैं, जे कैप ले लेते हैं, याद कर लीजिए इसको, जे कैप। और जेड डायरेक्शन के लिए जो हमारा यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं वो के कैप लेते हैं। सो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तो स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं। लेकिन अदर देन ये एक्स एक्सिस में भी नहीं है वो वेक्टर ए। अगर इस तरफ होता वेक्टर ए, तब तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू दिस इनटू आई कैप लिख देंगे। अंडरस्टूड? लेकिन अगर वो वेक्टर इस डायरेक्शन में नहीं है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली वो जरूरी नहीं है कि वो एक्स ऐसे होगा, मान लो इस डायरेक्शन में है वो, तो इस डायरेक्शन में है तो हमें उसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके साथ में ए के ऊपर ही कैप लगा के लिख देते हैं, जिससे कि ये भी क्या है, डायरेक्शन वेक्टर को दिखाएगा। ए की डायरेक्शन का वेक्टर है ना, इसको बोलेंगे हम क्या, डायरेक्शन वेक्टर। और चूंकि डायरेक्शन वेक्टर है तो इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन ओनली, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, बिकॉज इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है, तो वो तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गए। तो डेफिनेटली इसका जो है ये क्या होगा, ये इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड में कितना होगा, ये 1। तो इसलिए हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर।
So this type of vector is, that's why called as unit vector only, because its magnitude is 1, because it is there in this vector algebra or vector analysis to show the direction of that particular vector. बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारा वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी टोटल क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए. सो दिस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दिस यूनिट वेक्टर गिव्स अ वेक्टर. अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? सर यस बोलिए. सर इसका यूनिट वेक्टर का यूनिट होगा? हाँ, अभी यूनिट वेक्टर है ये हमारा, है ना. तो इसका क्या है, हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. अभी ये यूनिट वेक्टर है तो इसका केवल डायरेक्शन होगा, इसका कुछ और नहीं होगा. अभी हम अलग अलग इसमें देखेंगे हम लोग. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड पॉइंटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली. क्यों नहीं होगा, देखिए अगर ये वेलोसिटी है तो मैं इसको क्या दिखाऊंगा बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन. मान लो ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ऐसा दिखाऊंगा. तो इसका जो 50 मीटर पर सेकेंड या जो भी 50 किलोमीटर पर आवर या जो भी होगा वो मैग्नीट्यूड तो हो गया. तो यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड आ गया. तो यहाँ पर साथ में और क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे यही चाहिए कि डायरेक्शन. तो डायरेक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है. अभी डायरेक्शन है ईस्ट में जा रही है या लेफ्ट वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, नॉर्थ वेस्ट में जा रही है. सो दैट्स व्हाई दिस इज जस्ट फॉर द डायरेक्शन पर्पस. ओके, सो बिकॉज ये जो क्लियर, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इसको मैं मिटा दूं. अभी हम एग्जांपल से भी इसको और ज्यादा अच्छे से देख लेंगे. तो नो डायमेंशन एंड नो यूनिट, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है. बिकॉज हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में किया ना, इसकी डायमेंशन भी स्पीड का जो मान लो स्पीड है ये, तो v, तो ये क्या मीटर पर सेकंड में आ गई, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड में आ गया. तो डायमेंशन भी नहीं होगी और यूनिट भी नहीं होगी. इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली. वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर टू इट. तो ये हमने अभी डायमेंशन दिखा दिया. अभी हाँ मैंने बताई दिया आपको. अलोंग द एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो i, अलोंग द वाई एक्सिस जो होता है वो j, और अलोंग द z एक्सिस जो होता है वो k कैप होता है. हाँ, इसको बोलते समय हम k कैप, i कैप और j कैप बोलते हैं. लेकिन कभी हम लोग फ्लो में आ जाते हैं बोलते समय, तो कई बार i भी बोल दिया जाता है, 9i 4i जो भी कुछ बोलना है वो बोल देते हैं. तो भी अंडरस्टूड बात है बच्चों, ये कैप इसमें है. वी आर प्रोनाउंसिंग विदाउट कैप ऑल्सो, तो भी वो अंडरस्टूड हो जाता है कई बार कि ये आई कैप है ना. तो कभी कभी दिखाते भी नहीं है कई जगह पर ना आई कैप, वैसे दिखाना चाहिए है ना, लेकिन कहीं नहीं दिखाया तो भी यू शुड अंडरस्टैंड. सो 9 इज द मैग्नीट्यूड एंड आई कैप इज द डायरेक्शन, है ना. तो ये हो सकता है किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है, फोर्स का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है. सो ये हमारी बात है, समझ में आ गई बात. अभी हम डिटेल में और जाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो यू विल कम टू नो इन डिटेल एंड मोर स्पेसिफिकली. सो यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, ये बताई दिया मैंने आपको, ये होते हैं. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 यूनिट and its direction is same as that of the given vector. जैसे मैंने बताया, अगर a वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो a कैप का भी डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, यही वाला होगा, है ना. a कैप उसी के लिए तो बनाया है वो, है ना. केवल x डायरेक्शन के अलॉन्ग हो तब तो हम i कैप लिख देंगे उसको, है ना. तो ये a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a इंटू a कैप, ऐसा लिख लिया जाता है. तो डेफिनेटली ए कैप हो, ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाले हम, है ना. ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाले तो भी बनाएगा, बी कैप का निकाले तो भी बनाएगा. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी वो क्या बोलते हैं, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो वो बनाएगा, है ना. तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है जो कि ए कैप, उसका भी मैग्नीट्यूड अगर निकाला तो 1 है. आई कैप जो कि यूनिट वेक्टर है along the direction of x axis, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है. तो these all questions, small questions are making the MCQ questions to you. Understood? पहले ही मैं हमारा आ गया, इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने जीरो वेक्टर को आपको. तो जीरो वेक्टर किस लिए काम में आता है मैंने बता दिया आपको, कि हम जब कभी माइनस करते हैं वेक्टर में से वेक्टर और वो इक्वल वेक्टर्स हुए, माइनस कर दिया तो हमें जरूर जीरो लिखना है. बट जीरो डायरेक्टली वी कैन नॉट राइट,
So we have to introduce one more vector, and that vector is called as null vector or zero vector. बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी होती हैं जब देखो, जैसे कंसिडर द पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, पोजीशन वेक्टर दिखाना है. नाउ सपोज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट p, यहाँ p पर था वो, एट टाइम t पर वो ऑब्जेक्ट p पर था. मूव टू p डैश, वहां से p डैश तक गया थ्रू द पाथ pa p डैश, और देन कम्स बैक टू p, वापस p पर आ गया थ्रू द पाथ p डैश b p. देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका बताइए? 0. बट 0 नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हमें उसको डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेक्टर लाना पड़ेगा. और इसीलिए आवश्यकता महसूस हुई, देयर वाज द नीड टू शो, टू रिप्रेजेंट और टू इंट्रोड्यूस वन वेक्टर व्हिच कैन represent zero displacement. Since the initial and final position coincide, therefore the displacement is not zero but zero vector or null vector. तो ये हम ऐसे दिखाते हैं ना बेटा. तो जीरो वेक्टर दिखाएंगे, उसको जीरो के ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगा देंगे. The illustration of negative vector just justifies the need of zero vector. नेगेटिव वेक्टर भी हमको दिखाना है तो उसके लिए भी जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी थी. मैंने आपको बता ही दिया था. अब भी ये देखो, ए में उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड किया तो वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे तो इट शुड बी वेक्टर ओनली, है ना, वाई वेक्टर अलजेब्रा. तो ये हमको इस तरह से दिखाना पड़ा. या इसी तरह से देखो, कोई वेक्टर ए है, उसमें नल वेक्टर ऐड किया तो कितना आएगा? ए वेक्टर ही आएगा. या नल वेक्टर में अगर ए वेक्टर ऐड किया तो भी ए वेक्टर आएगा. तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे नियम है. some rules are there. You learn these rules now itself. It will be very very useful to you. What is the next rule? If you multiply any magnitude, किसी भी मैग्नीट्यूड को आप नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? नल वेक्टर ही आएगा, है ना. तो अच्छा, साथ में किसी भी मैग्नीट्यूड को आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू नल वेक्टर. तो ये नल वेक्टर की आवश्यकता क्यों महसूस हुई आप समझ सकते हैं. सो इफ नल वेक्टर इज नॉट देयर, यू कैन नॉट शो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो विद अ वेक्टर. कि जीरो को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो वो डेफिनेटली यहाँ पर वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर ही आना चाहिए. तो इसलिए वहां नल वेक्टर दिखाते हैं, है ना. तो ये सब चीजों के लिए हमें आवश्यकता पड़ी. और नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का डेफिनेटली अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो जीरो ही आना है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना है, तो नल वेक्टर का या जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर ही आना है. तो इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं, है ना. इसी तरह से फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर थोड़ा समझ लेते हैं. दो इट विल नॉट बी मच विल बी रिक्वायर्ड फॉर फर्दर, बट समझना सभी जरूरी है, हमें पता होना चाहिए. इन अवर स्टडी वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स लोकेशन. उसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं, मान लो, है ना, ऐसा ऐसा मूव हो रहा है, उसकी हेड भी मूव हो रही है और टेल भी मूव हो रही है. So shifting a vector parallel to itself leaves a vector unchanged. ऐसे करके शिफ्ट कर दिया उसको हमने, है ना, लेटरल शिफ्ट कर दिया. तो such vectors are called free vectors. मैं यहाँ था, उसको शिफ्ट करके मैं यहाँ ले आया, मान लीजिए यहाँ है वेक्टर, उसको शिफ्ट करके यहाँ ले आया, तो it is a free vector, है ना, it is a free vector. However, in some physical applications, location of vector is very important. तो such vectors are called localized vector. जिसकी पोजीशन हमको चेंज नहीं करनी है. We have to keep them at the same place. So such vectors which are called such vectors are called as localized vector. So I think this much I wanted to talk to you regarding this different topics or different terms related with this vectors. Okay, so in the next session we will study the multiplication and division of vectors and the triangular and parallelogram law of vector addition. So thank you very much. Thank you, sir.